Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is fascism and communism. These are the two topics that you may find it in the previous papers as well, in the past papers. Sometimes they ask a kind of short notes on the fascism and Nazism, and sometimes communism, totalitarianism, dictatorship, short notes. And sometimes the examiners ask you questions in detail. So, anyhow, in today's class, we are going to talk about fascism and communism in great details so that you might be able to talk about both the topics uh, comprehensively, and if short question, then you may be able to talk about on them briefly. So kindly share this lecture in our WhatsApp group SEF6. Invite the members that may be in your contact, and then we are going to continue our class. So also comment if I am clearly audible. I do not see so far any comments. I don't know why, what's the reason. So if there is any issue, then you should comment, like this live broadcast, so that all of the members and the students join the class without any further delay. If I am clearly audible, then write. So in today's class, we are going to talk about fascism. Fascism. You might have heard this word many times, and you might have come across this word in newspaper articles, and this is the oft repeated word. Even fascist state does not exist, still the use of this word does prevail in the society. This is such a powerful word. It explains a lot of things. It explains cruelty, brutality, lockdowns like in Kashmir by India. So everything, it has got the name of nationalism and imperialism and aggressiveness. So all these things come under the category of fascism. So we are going to talk about this term academically in today's class. When we look at the history from where it started, it started from Italy. Italy, after the World War First, was affected a lot. Italy in the World War First, with its allies, hoped that after the World War First it would get some dependencies, would get some colonies from where Italy would get the wealth, extract the wealth. But anyhow, after the Paris Peace Conference, all hopes shattered. तो दूसरी पहली जंग अजीम के बाद इटली को नुकसान उठाना पड़ा. इसने अपने अलाइज के साथ मिलकर जंग लड़ी और ये उम्मीद जाहिर की थी कि मुझे कॉलोनीज मिलेगी, दूसरे ममालिक पर हुकूमत करने का इख्तियार मिलेगा और मैं उससे पैसे कमाऊंगा. लेकिन इटली
में ये ना हो सका। जंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, आर्मी उसकी कमज़ोर हुई, तनख्वाहें उनके पास थी नहीं, इकानमी जंग की वजह से बैठ गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कियास था, अनार्की थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन था। ये सब कुछ जो है इटली में था। इटली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। मतलब जो इन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया था वो बिल्कुल फेल हो चुका था। इन सारे वजूहात ने एक शख्स को और उसकी पार्टी को बड़ा होने में या उसकी ग्रोथ में हेल्प किया। उस शख्स का नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी ने इन सारे हालात का फ़ायदा उठाया कि वैसे भी सब कुछ तो ख़राब हो चुका है, लोगों को एक मसीहा चाहिए, एक हीरो चाहिए। तो ये जो है उसे पता लग गया और उसने जो है अपनी फाशिस्ट पार्टी बना दी, पार्टी ऑफ डायरेक्ट एक्शन। ये लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट एक्शन। तो उसने ये पार्टी बना दी डायरेक्ट एक्शन, और उसके ज़रिए जो है उसने बाकी तमाम पार्टियों को और रिवोल्यूशन के ज़रिए, इनकिलाब के ज़रिए या फोर्स के ज़रिए तमाम अपोनेंट्स को भी ख़त्म किया, और जो है हर जगह अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ जिधर भी जाते उसको कब्जा कर लेते। पहुंचते पहुंचते रोम तक गए। वहां का जो किंग था, जो छुप गया था, उसने इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ड्यूस उसको कहा जाता है। ये ड्यूस बना, और इसी तरह इसने तमाम पार्टियों को ख़त्म किया, पार्लियामेंट्री निज़ाम को, सिस्टम को ख़त्म किया, और फाशिस्ट स्टेट जो है मुसोलिनी ने इस्टेब्लिश किया। और इसी तरह इटली जो है 1922 से लेकर बढ़ते 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 फिर 1929 तक वो बिल्कुल एक फाशिस्ट स्टेट बना। ये तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है कि फाशिज्म कहां से आया, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इरादे क्या है, नीयत क्या है, क्या काम करता है। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, फाशिज्म जो है इस वक्त नाम है नेशनलिज्म का, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। वो कहता है कि द इटालियन, कि इटली के जो लोग हैं, दे आर सुपीरियर टू एनी अदर नेशंस, कि बस नेशनलिज्म ही सब कुछ है। दूसरा, फाशिज्म इज द नेम ऑफ एग्रेसिवनेस, बस जुल्म, एग्रेसिवनेस, पीछे नहीं हटना, बात जब करना है तो करो, फोर्स यूज करो, वायलेंस यूज करो, फोर्स, वायलेंस, एक्शन। ये उसकी बाद में थ्योरी बनी। अगरचे मुसोलिनी खुद ये कहता था, मुसोलिनी, दैट माई प्रोग्राम इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। बोल्शेविक रिवोल्यूशन या रशिया का जो रिवोल्यूशन था और वहां पर जो कम्युनिज्म आया, तो वो दैट वाज मोर आइडियोलॉजिकल, बेस्ड ऑन अ थ्योरी। वो थ्योरी पर बेस करता था। और जो फाशिज्म है मुसोलिनी का, उसने कहा कि माई प्रोग्राम इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो यहां से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि फाशिज्म के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो तो है ही नहीं, किसी किताब में है ही नहीं, या ये किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने या पॉलिटिकल फिलासफर ने कोई थ्योरी तो नहीं दी है, बल्कि एक शख्स था, मुसोलिनी था, उसने फाशिस्ट पार्टी बना दी और बस अपने नजरियात पर उसमें डालता रह गया। और इसी तरह ये आइडिया जो है वजूद में आया फाशिज्म का। और साथ में इसने कहा दैट आई बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन। मुसोलिनी कहा करता था कि
मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट एक्शन का है। तो यहां से पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंस में ये कहते हैं कि अगरचे बज़ाहिर हमें प्रिंसिपल्स नहीं मिलते, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एक्शन, इसकी अपनी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फोर्स, वायलेंस एंड एक्शन। तो मुसोलिनी ने सब कुछ कंट्रोल किया, पार्लियामेंट्री निजाम को खत्म किया, तमाम पार्टियों को खत्म किया। ये आप फाशिज्म में डिस्कस कर सकते हैं दैट फाशिज्म इज बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम। फाशिज्म repudiates constitutional democracy, it repudiates the parliamentary system, it establishes one party system। और मुसोलिनी ने साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के अपोनेंट्स थे उस सब को खत्म किया। अब एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन इसने अपने लिए बना दी, ऊपर जो है रखा द लीडर द ड्यूस द मुसोलिनी। टॉप पर इस सिस्टम में, इसका जो सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो ये है कि टॉप पर ड्यूस होगा, टॉप पर मुसोलिनी होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरे लेयर में या दूसरे लेयर में जो आएंगे वो होंगे द लॉयल मेंबर्स ऑफ द फाशिस्ट पार्टी। फिर जो है उसके लॉयल मेंबर्स, और मेंबर्स को भी जब ये लेता था तो बड़े एतमाद के साथ टेस्ट लेकर और उसकी लॉयल्टी को देखकर वो जो है फिर अपनी पार्टी में शामिल करता। फिर उसके बाद इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाकर कारपोरेटिव पार्लियामेंट बनाया, जिसमें छोटे छोटे कारपोरेशंस होते हैं। वो कारपोरेशन जो हेड करता, जो कमेटी हेड करती, उसको कहा जाता है ग्रैंड काउंसिल ऑफ फाशिस्ट पार्टी, ग्रैंड काउंसिल ऑफ द फाशिज्म। अब छोटे छोटे कारपोरेशन क्या करते थे, उसका एक शख्स हेड होता जो उनकी पार्टी के मेंबर से होता, और वो सिटीजन्स की एक्टिविटीज को देखता कि ये लोग क्या एक्टिविटीज, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, वो उन लोगों को देखता। अच्छा, फाशिज्म की खतरनाक बातें आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि जो शख्स मुखालिफ होता उसको कत्ल करते, जो शख्स मुखालिफ होता या क्रिटिक होता, ये राइटर्स वगैरह जर्नलिस्ट वगैरह जो क्रिटिक्स होते हैं, उसको ये लोग किडनैप करते थे। फाशिज्म में ये जो है मुसोलिनी तमाम मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को, जो पीरियडिकल्स आते हैं हफ्तावार या मंथली, उन सब को जो है बैन कर दिया, खत्म कर दिया। सेंसरशिप थी हर जगह पर, और ख़ास न्यूज़पेपर्स और ख़ास जर्नल्स और ख़ास पीरियडिकल्स होते जो कि फाशिसाइस्ट थे, जो पहले से फाशिज्म के आइडियाज़ को प्रमोट करते थे, उनको सिर्फ आज़ादी थी। फ्रीडम जो है, लिबर्टीज वर क्रश्ड। फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज जो है फाशिज्म में नहीं होती, ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो ये सारी बातें आप जरूर लिखें दैट मुसोलिनी ने फाशिज्म में क्या किया, आज़ादी, लिबर्टी, फ्रीडम खत्म किया, सेंसरशिप हर चीज पर लगा दी, क्रिटिक्स या उसके मुखालिफिन को कत्ल किया जाता, दे वुड बी किल्ड, मर्डर्ड, बीटन एंड दे वुड बी किडनैप्ड, उसको किडनैप किया जाता। अभी जो लोग, आप लोग न्यूज़पेपर में ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं तो आप लोग ये पढ़ते हैं कि इंडिया में मोदी सरकार ने फाशिस्ट मीन्स इख्तियार किए हैं टू सबजुगेट कश्मीरीज, के कश्मीरियों को सबजुगेट किया जाए, गुलाम बनाया जाए।
अब फाशिस्ट स्टेट बन चुका है इंडिया। ये हमारी मीडिया, हमारा न्यूज़पेपर ये टर्मिनोलॉजीज इंडिया के लिए यूज कर सकता है। आप लोग पेपर में इंडिया को फाशिस्ट स्टेट नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं दैट इंडिया इज एम्प्लॉइंग फाशिस्ट मीन्स या टेक्निक्स या मेथड्स या एक्शंस टू सबजुगेट आर टू कंट्रोल द कश्मीरीज, कि उनको कंट्रोल किया जाए। किडनैप भी किया जाता है, कत्ल भी किया जाता है, इंटरनेट भी ब्लॉक है, मीडिया भी ब्लॉक है, वहां का एजुकेशन जो है वो है ही नहीं। तो जाहिर बात है, तो अगर आप लोगों ने इस टर्म को यूज भी करना है तो इस सेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद फाशिज्म के और क्या क्या चीजें हैं। फाशिज्म में यह बात किया जाता है दैट इट इज नेशनलिस्टिक। नेशनलिस्टिक का मतलब यह है कि मोसोलिनी लोगों को इनकरेज करता, सुपीरियर नेशन और इंफीरियर नेशन की कहानी किससे सुनाता और कहता कि द इटालियन आर द सुपीरियर और द सुपीरियर टू अदर नेशंस, के बाकी नेशंस से जो है ये बेहतर है, एंड दे मस्ट रूल ओवर देम, और ये लोग जो है दूसरों पर हुकूमत भी करेंगे। और यही वजह है दैट फाशिज्म बिलीव्स इन वॉर, फाशिज्म बिलीव्स इन एक्सपेंशन, फाशिज्म बिलीव्स इन इंपीरियलिज्म। ये चाहते थे कि दूसरे ममालिक को भी कब्जा करें, फाशिज्म को एक्सपेंड करें। फाशिज्म जो है ये भी बिलीव करता है इंपीरियलिज्म को, कि दूसरे ममालिक को कॉलोनी बनाए और वहां के वसाइल, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करे, उससे भी फायदा उठाए। फाशिज्म बिलीव्स इन वॉर, जंग को पसंद करता है। मुसोलिनी कहता था वॉर इज टू मैन एज मैटरनिटी इज टू अ वुमन। मुसोलिनी की ये बातें बड़ी खतरनाक हैं कि मर्द के लिए जंग ऐसी है जैसी एक औरत के लिए ममता। वॉर इज टू मैन एज मैटरनिटी इज टू अ वुमन। तो फाशिज्म जो है वार पर बिलीव करता है, मिलिट्री को पावरफुल बनाता है। फाशिज्म जो है स्टेट की सुप्रीमेसी पर बिलीव करता है। फाशिज्म डज नॉट बिलीव इन इंडिविजुअल, एक आम आदमी पर बिलीव ही नहीं करता। मुसोलिनी कहता था इंडिविजुअल इज फ्लीटिंग, स्टेट इज परमानेंट। इंडिविजुअल तो फ्लीटिंग है जनाब, खत्म होने वाला है, एक दिन जाएगा। स्टेट इज परमानेंट। द लीव्स वेदर अवे, द ट्री स्टैंड्स। ये मुसोलिनी के अल्फाज हैं कि पत्ते गिरते हैं, दरख्त कड़ी रहती है। तो स्टेट मजबूत होना चाहिए, आर्मी मजबूत होनी चाहिए। मुसोलिनी और मुसोलिनी की जो हुकूमत है वो मजबूत होनी चाहिए। बाकी कीड़े मकोड़े हैं, वो जाएंगे आएंगे। इंडिविजुअल इज नथिंग, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड इट। ये भी लिखे अपने साथ, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। तो इस वजह से इसको कहा जाता है दैट फाशिज्म इज अ टोटल स्टेट एंड फाशिज्म इज टोटलिटेरियन। कि फाशिज्म जो है टोटलिटेरियनिज्म पर बिलीव करता है, कि ये कहता है एवरीथिंग इनसाइड द स्टेट, आप सब कुछ हैं लेकिन इनसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट नथिंग, कुछ भी नहीं। तो स्टेट ही सब कुछ है। तो ये जो है फाशिज्म के बिलीव्स हैं, और यही बिलीव्स फिर आप लोगों की जो सिलेबस का टॉपिक नाजिज्म नहीं है, लेकिन साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं फाशिज्म इटली में आया और नाजिज्म जो है वो जर्मनी में आया।
फाशिज्म मोसोलिनी लेकर आया और नाजिज्म हिटलर लेकर आया। दोनों जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आए, और वो जो है जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा था करके लेक्चर में, दैट डिक्टेटरशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस, कि डिक्टेटरशिप तब आता है जब क्राइसिस हो। तो दोनों ममालिक में, इटली में भी और जर्मनी में भी क्राइसिस थे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनफॉल, सब कुछ जो है खराब था। मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। तो जिस तरह खराब हालात ने मोसोलिनी फाशिज्म को जन्म दिया, इसी तरह जर्मनी के खराब हालात ने नाजिज्म को और हिटलर के जो है राइज में एक अहम किरदार अदा किया। अच्छा, और नाजिज्म भी नेशनलिस्टिक है, नाजिज्म भी टोटल स्टेट है, नाजिज्म भी जो है मिलिट्री में और पावर में बिलीव रखती है, नाजिज्म भी जो है कहती है कि स्टेट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। नाजिज्म जो है हीरो वर्शिप में बिलीव करती है। नाजिज्म के मुताबिक और इवन फाशिज्म के मुताबिक भी दैट द लीडर इज इनफॉलिबल, मोसोलिनी इज ऑलवेज राइट फाशिज्म के मुताबिक। और नाजिज्म कहता है दैट हिटलर इज इनफॉलिबल, द लीडर इज इनफॉलिबल, वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी गलती नहीं कर सकता, वो हमेशा राइट होता है। ही इज राइट एवरी टाइम। लीडर ही सब कुछ है, और जो आम अवाम है दे मस्ट ओबे द लीडर, कि ये जो है लीडर को, हिटलर को ओबे करेंगे। तो ये बड़े जबरदस्त आइडियाज हैं अगर आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर यूर टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंडिंग डिक्टेटरशिप, बस यही डिक्टेटरशिप है, प्योर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप यही है। लिबर्टीज खत्म हो जाती है, मीडिया सेंसर हो जाता है, और जो है सब कुछ जो है खत्म हो जाता है। इवन दे बिलीव इन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये फरहानदा जेब आप क्वेश्चन जो है आखिर में करें। फाशिज्म जो है जैसे मैंने कहा, ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोसोलिनी, इट ओरिजिनेटेड इन इटली। नाजिज्म जो है दोनों में इतना फर्क नहीं है, आइडिया सेम है। नाजिज्म, ये स्पेलिंग भी आपने गलत लिखा है, नाजिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ हिटलर एंड इट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, ये जर्मनी में आया। ये सिर्फ फर्क है, दो मुख्तलिफ लीडर्स थे और दो मुख्तलिफ ओरिजिन्स आपको मिलते हैं। बाकी हिस्ट्री भी सेम है, इनके जो प्रिंसिपल्स और थीरीज वगैरह है वो भी सेम है, इतना फर्क नहीं है, सिर्फ लोग अलग है, नेशंस अलग है। इसी तरह नाजिज्म भी नेशनलिस्टिक है, अपनी नेशन पर। जो इटली के लोग थे, सॉरी जर्मन थे, जर्मन, और उसमें भी जो वाइट जर्मन, तो हिटलर कहता था दैट देयर आर सम पीपल हु आर बॉर्न टू रूल एंड द अदर्स आर बॉर्न टू ओबे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बने ही जो है रूलिंग के लिए हैं, बने, ये लोग बने ही रूलिंग के लिए हैं, दे आर बॉर्न टू रूल एंड सम अदर आर बॉर्न टू ओबे। तो इसने कहा कि अगर मैं बेटा हूं एज अ डिक्टेटर, तो मैं पैदा ही हुआ हूं टू रूल यू, और आप अवाम, आम अवाम, दे आर बॉर्न टू ओबे। इसने लोगों की मेंटेलिटी भी यही बनाई थी कि लोग इसकी वर्शिप करते थे, इबादत करते थे। ये खुद कहता था वर्शिप द हिटलर, हिटलर की इबादत करो। साथ में इन लोगों ने क्या किया, रिलीजन को और स्टेट को अलग अलग किया और कहा रीडर क्या कहते हैं, रेंडर ऑन टू सीजर व्हाट इज सीजर्स, और फिर कहता था कि रेंडर ऑन टू क्राइस्ट व्हाट इज क्राइस्ट, कि आप ईसा को वो कुछ दे दे। ईसा से मुराद इन लोगों का खुदा होता है,
खुदा को वो दे दे जो खुदा का है, और सीजर जो कि एक लीडर था उसको वो दे दे जो सीजर का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलीजन को अलग रखें, वो खुदा का है, बस वो आप जाने, आपका खुदा जाने, और जो हिटलर को देना है वो आप लोगों ने अलग देना है। दोनों को मिक्स ना करें। तो ये खुद को इस दुनिया में बहुत बड़ा मजाजी खुदा समझता था। अच्छा, दोनों के आइडियाज पर क्रिटिसिज्म क्या है? दे आर एंटी ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं, दोनों में नहीं है। एंटी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। इसमें वायलेंस है, रिवोल्यूशन है, जंग है, ज्यादती है, पीस नाम की कोई चीज ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस, फियर, डर, यही खौफ रहता है इस हुकूमत में। I hope you got the ideas. Now you might be able to write something on the topics Nazism and fascism in your paper. Both topics are really important for the your examination point of view. अच्छा, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है, इसका जो आइडिया है, दैट इज गिवन बाय द ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसके नजरियात दिए थे। इन सिंपल वर्ड्स अगर बता दूं, कम्युनिज्म जो मॉडर्न डिफिनीशन है, कम्युनिज्म रिफर्स टू स्टेटलेस सोसाइटी, कि स्टेटलेस सोसाइटी जो है उसको रिफर करता है, कि उसमें स्टेट का कंसेप्ट ना हो, एक कम्युनिटी हो जिसमें बराबरी हो, वेयर देयर इज इक्वालिटी, वेयर देयर इज हैप्पीनेस, नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, race, or economic differences. There is no class, upper class, middle class and lower class. Everyone is equal. तमाम के तमाम लोग बराबर होंगे कम्युनिज्म में। स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं अब आप लोगों को स्टेजेस बताता हूं। बराबरी होगी, क्लास, कोई रंग, काला, गोरा, पीला, ये बातें नहीं होगी। अमीर गरीब, ये बातें भी नहीं होगी। ऊंचे दर्जे नस्ल का और नीचे दर्जे नस्ल का, ये बातें भी नहीं होगी। बड़े रिलीजन का और छोटे रिलीजन का, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये बातें भी नहीं होगी। कम्युनिज्म में सब जो है बराबर होंगे, एक होंगे, एक कम्युनिटी। स्टेटलेस सोसाइटी, इवन यहां तक कि स्टेट भी नहीं होगा, गवर्नमेंट भी नहीं होगा। इतना जबरदस्त सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के मुताबिक। अब सवाल यह है कि क्या कम्युनिज्म है, ऐसा है जो कार्ल मार्क्स ने कहा है? तो इसका जवाब है नो। जवाब यह भी है नेवर, कि कभी हो भी नहीं सकता। अच्छा, आखिर में इस बयान को जो मैंने अभी दिया है कि कभी हो भी नहीं सकता और नेवर वगैरह, इस पर हम बात करेंगे। अभी कार्ल मार्क्स को समझते हैं, और जो रशिया का कम्युनिज्म है, जो चाइना का कम्युनिज्म है, जो लेनिन का है, जो माओ का है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कम्युनिज्म को। फिर बाद में जो इसकी इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इसकी जो थीरीज है वो जो दिए हैं, फिर लेनिन ने दिए हैं। लेनिन ने फिर कहा, बल्कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को लेकर कहा, ऐसे आप लोगों ने पेपर में भी लिखना है, कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक कैपिटलिज्म जो है ये क्लास डिस्टिंक्शन को जन्म देता है। इट गिव्स बर्थ टू द क्लास डिस्टिंक्शन। इट मेक्स
some people superior and others inferior, some people rich and others poor. जो कैपिटलिस्ट है उसको बुर्जुआजी कहते हैं, और जो वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, जो मजदूर तबका है, उसको प्रोलेटेरिएट कहा जाता है. कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कहता है कि ये पहले एक सिस्टम था, एक मुल्क में था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल बन चुका है, क्योंकि कैपिटलिज्म की ये क्वालिटी है कि ये अपने लोगों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने मजदूरों से भी फायदे उठाते हैं, और जब इसको पता चल जाता है कि दूसरे मुल्क में भी इसको रॉ मटेरियल मिल सकती है आसान दामों, अरजान या जो है कम दामों पर, चीप लेबर उसको मिल सकता है, चीप जो है रॉ मटेरियल उसको मिल सकता है, तो ये दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, और ये कैपिटलिस्ट उन ममालिक को अपनी डिपेंडेंसीज और कॉलोनीज बनाते हैं और उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस तरह से जो है ये पूरी दुनिया में फैल जाता है, और सारी दुनिया की दौलत जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास हड़प लेते हैं, और इसी तरह जो है कैपिटलिज्म इंटरनेशनल कैपिटलिज्म बन जाता है. फिर कहता है कार्ल मार्क्स कि यही लोग पूरी दुनिया की जो मजदूर तबका प्रोलेटेरिएट है, यही लोग हर दफा जब एक्सप्लॉइट होते हैं, उनसे फायदे लिए जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो एक वक्त आएगा कि ये लोग जो है उनके पास जो तनख्वाह दी जाती है वो इतनी कम होगी कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, नीड्स पूरे नहीं होंगे, सही खाना उनको मुयस्सर नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट बहुत जालिम है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं, मजदूर के फायदे का कभी नहीं सोच सकते. तो फिर ये मजदूर जब हर तरह से मायूस हो जाएं पूरी दुनिया के, तो फिर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे और रिवोल्यूशन, इनकिलाब बर्पा करेंगे और लड़ेंगे अगेंस्ट द बुर्जुआजी, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, और इसी के जरिए जो है इन कैपिटलिस्ट को शिकस्त दिया जाएगा, और इसको कहा जाएगा कि एक नई हुकूमत आएगी, और उसको नाम दिया द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, के मजदूर तबके का डिक्टेटरशिप. अब मजदूरों का डिक्टेटरशिप आए तो डिक्टेटरशिप फिर क्यों हो? तो फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि उनका डिक्टेटरशिप इसलिए हो ताकि ये कैपिटलिस्ट दोबारा से सर ना उठाए, और ये डिक्टेटरशिप तब तक कायम हो जब तक जो कैपिटलिज्म है और कैपिटलिस्ट है उसकी जड़ें खत्म नहीं हो जाती. जब तक आखिरी कैपिटलिस्ट, आखिरी जड़ कैपिटलिज्म का खत्म हो जाए, तब जो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट खत्म हो जाएगा और सोशलिज्म कायम होगा, जिसमें क्या होगा, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, सब कुछ नेशनलाइज हो जाएगा, सरकार का, हुकूमत का हो जाएगा. बिजनेस लोग करेंगे, काम करेंगे, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो एक हुकूमत होगी और सब लोग उसके लिए फिर काम करेंगे, बराबरी होगी, स्टेट आपको सब कुछ देगा. फिर एक वक्त आएगा जब सब बराबरी आ जाएगी. फिर लेनिन कहता है कि जब बराबरी हो, क्लास खत्म हो, ये बुर्जुआजी खत्म हो, कैपिटलिज्म खत्म हो, और ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? According to Karl Marx, these things are made to protect capitalism, to protect the elite, to protect the aristocrat, to protect the bourgeoisie. ये हुकूमत मेरे और आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, ताकि उनको कोई कुछ ना कर सके.
ये अदालत मेरे और आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है ताकि इनकी दौलत को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके पावर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये पार्लियामेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो फिर जब कैपिटलिस्ट खत्म होगा, कैपिटलिज्म खत्म होगा, तो फिर तो पार्लियामेंट को भी खत्म करे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म करे, गवर्नमेंट को भी खत्म करे, सब कुछ को खत्म करे, क्योंकि जरूरत ही नहीं रहती। तो फिर क्या आएगा? विदर अवे ऑफ द स्टेट, द स्टेट विल विदर अवे, स्टेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इसी तरह जो है क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी वजूद में आ जाएगी। एंड दिस इज द आइडियल कम्युनिज्म। फिर ये जो आइडियल कम्युनिज्म है वो ये है जो कार्ल मार्क्स चाहता है कि कोई स्टेट नहीं होगा, कोई हुकूमत नहीं होगी, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी को कम्युनिज्म कहा जाता है। आई होप नाउ यू गॉट द होल स्टोरी कि कम्युनिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स इसके बारे में क्या कहता है, रिवोल्यूशनरी स्टेज कौन सा है और पोस्ट रिवोल्यूशनरी स्टेज कौन सा है। अच्छा, इसके बाद अब सवाल आपके जहन में यह होगा, क्या दुनिया में कोई कम्युनिस्ट स्टेट है? जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी, तो दुनिया में ऐसा कोई स्टेट है ही नहीं। चाइना का अपने आप को कम्युनिज्म कहता है, लेकिन वहां पर हुकूमत भी है और वहां पर स्टेट भी है और पावरफुल स्टेट है, कंट्रोलिंग, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह। स्टेटलेस नहीं है। रशिया में कम्युनिज्म है, लेकिन वहां पर क्या है? स्टेटलेस तो नहीं है, क्लासलेस भी नहीं है, ऊपर से डिक्टेटरशिप जरूर है। तो कार्ल मार्क्स के नजरियात को मटीरियलाइज करना इस दौर में पॉसिबल नहीं है, इवन आने वाले दौर में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये रिवॉल्यूशन उस जगह पर आएगा। ये क्रिटिसिज्म भी है, आप लोग लिख सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन जब आएगा तो वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से आएगा, जहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पर जर्मनी, अमेरिका, यूके, लेकिन वहां पर रिवॉल्यूशन आया ही नहीं, बल्कि रिवॉल्यूशन जब आया तो एग्रेरियन कंट्रीज से आया, जैसे कि चाइना ले ले, जैसे कि रशिया ले ले, वहां पर रिवॉल्यूशन आया। फिर बाद में क्या हुआ? रशिया एक्सपेंड करता गया, दुनिया में दो ब्लॉक्स आई, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक। फिर कम्युनिज्म को जो है शिकस्त हुई 1989 में, रशिया को शिकस्त हुई कोल्ड वॉर के बाद एट द हैंड्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में इनकलाब आया ही नहीं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में मजदूर तबका जो है सफर कर ही नहीं गया, बल्कि और भी अच्छा हुआ। अब अमेरिका का मजदूर दे के मजों में है। तो कैपिटलिज्म जो कार्ल मार्क्स के दौर का है, तो इस दौर में कैपिटलिज्म चेंज हुआ। ह्यूमन राइट्स की बात भी कैपिटलिज्म में की जाती है, कैपिटलिज्म में कंपटीशन की बात भी की जाती है, एफिशिएंसी की बात भी की जाती है, अच्छी सैलरीज की बात भी की जाती है, मजदूरों का ख्याल भी रखा जाता है। और जो चैंपियंस ऑफ दी कैपिटलिज्म है, जैसे अमेरिका, जैसे यूके, जैसे जर्मनी, जैसे कनाडा वगैरह, तो ये जो है वहां पर ये सब जो है मजों में है, सारे मजदूर मजों में है। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स का ये नजरिया गलत साबित हुआ कि जिधर इंडस्ट्रीज होगी वहां पर रिवॉल्यूशन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से जो मुमालिक रशिया के कब्जे में थी, उसकी कॉलोनी थी, और 1889 के बाद उससे आजादी हासिल की रशिया से, तो उन मुमालिक ने कैपिटलिज्म अपनाया, डेमोक्रेसी अपनाई, कम्युनिज्म नहीं अपनाया, रशियन कम्युनिज्म।
तो ये जो है यहाँ पर हम कहते हैं दैट कम्युनिज्म फेल्ड आफ्टर 1889 के बाद कम्युनिज्म फेल हुआ। अब मैं आपको मौजूदा हालात बता दूं कि तरक्की जो की है रशिया ने भी और चाइना ने भी, वो इस वजह से नहीं कि इनका सिस्टम जो है कम्युनिस्ट स्टेट है, नहीं, बल्कि इन लोगों ने फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया, शामिल किया उसमें, और अब इसको कहते हैं मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। अब ये लोग जो है इंडस्ट्रियल भी हैं, अब ये लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी बिलीव करते हैं, अब ये लोग जो है ओपन मार्केट में भी बिलीव करते हैं, और ये लोग दुनिया के साथ कंपटीशन में भी हैं। तो इस वजह से 1989 के बाद या 1980s के बाद जब चाइना को पता चला कि चाइना तो तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये कैपिटलिज्म ना अपनाए, तो जब इसने कैपिटलिज्म को अपनाया तो चाइना ने फिर तरक्की की। अच्छा, अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 important topics: fascism, Nazism and communism. We also discussed some glimpses of totalitarianism, कि totalitarian state कौन सा होता है और वो क्या है। तो बीच बीच में मैंने आप लोगों को बताया कि totalitarian वो स्टेट होता है जो ये क्लेम करता है everything within the state, nothing outside it, कि सब कुछ जो है स्टेट के अंदर हो, कोई चीज भी उससे बाहर ना हो। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट 2 ने क्वेश्चन किए थे, काइंडली उसको दोबारा से रिपीट करें। डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सोशलिज्म का जो आखिरी हद है, आखिरी हद कि उसमें सोशलिज्म भी खत्म हो जाएगा, स्टेट लिस्ट सोसाइटी आएगी, क्लास लिस्ट सोसाइटी आएगी, तो वो कम्युनिज्म होगा। जब तक ये क्लास लिस्ट सोसाइटी और स्टेट लिस्ट सोसाइटी नहीं बनती तब तक इसको जो है लोग सोशलिज्म का नाम देते हैं, जिसमें इक्वालिटी हो, हैप्पीनेस हो, खुशहाली हो, और सब लोग जो है अपने मुल्क के लिए काम करें, और एवरीथिंग इज इन कमांड इकोनॉमी हो। कमांड इकोनॉमी का मतलब ये है कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो। जी, Anwar differs from communist and nationalist forms of authority and dictatorial regimes and since ये तो आप ये क्या है, 3-4 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं भाई। What are the ways to bring fascism in modern times to a halt? फाशिज्म तो खैर अब ख़त्म हो चुका है ना मॉडर्न टाइम्स में। फाशिज्म तो क्या मॉडर्न टाइम में ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है इसके कंसेप्ट ख़त्म हो रहे हैं, नेशनलिज्म के कंसेप्ट ख़त्म हो रहे हैं, ये खुद ख़त्म हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कैसे, टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब आप टेक्नोलॉजी को तो रोक नहीं सकते, साइंस को तो रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तो रोक नहीं सकते। इस वजह से जो है एक ग्लोबल जो है लीडरशिप की अब जो है शायद 100 साल लगे, 200 साल लगे, जितना भी लगे, ये स्टेट जो है ये सब फिर एक होगा। ये स्टेट के कंसेप्ट और गवर्नमेंट कंसेप्ट भी शायद ख़त्म हो जाए वक्त के साथ साथ। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इनके इनमें फ़र्क क्या है, तो फाशिज्म का तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, इट ओरिजिनेटेड इन इटली, और जो शख्स इसको इंट्रोड्यूस कर गया वो था फाशिस्ट पार्टी का, और उसका नाम था मुसोलिनी। और फिर जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म तो आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स है। कम्युनिज्म जो है ये बिलीव करता है स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी में, जबकि फाशिज्म डज नॉट बिलीव इन स्टेटलेस और इन क्लासलेस सोसाइटी, बल्कि फाशिज्म बिलीव करता है दैट स्टेट इज एवरीथिंग, कि स्टेट ही सब कुछ है, इंडिविजुअल इज नथिंग, कि इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। What is the difference between fascism and realism? As realist also believes in force. जी बिल्कुल सही है। रियलिज्म का मतलब हमने बड़ा नेगेटिव लिया है। जब आप लोग आईआर में पढ़ते हैं हम यही कुछ कहते हैं कि रियलिज्म बिलीव्स इन फोर्स एंड वायलेंस एंड, ये ठीक है, लेकिन साथ में रियलिज्म इस ह्यूमैनिटी पर भी बिलीव करते हैं। रियलिज्म कभी भी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान रियलिस्ट बन जाए और इंडिया को ख़त्म कर दे, तो इंडिया को ख़त्म करेगा तो फिर तो खुद भी ख़त्म होगा। तो रियलिज्म थोड़ा सा पॉजिटिव है।
रियलिज्म का मतलब ये है कि आप अपना भी फायदा ढूंढे, मेरा भी फायदा ढूंढे। अमेरिका अगर रियलिस्ट है तो अमेरिका चाहता है कि वो अपने आप को भी स्ट्रांग करे और जो इसके बाकी ममालिक है उसको भी जो है थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करें, क्योंकि दुनिया जो है वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो रियलिज्म फिर क्या है? रियलिज्म का मतलब यह है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट को लिया जाता है, तो इसमें इतनी नेगेटिविटी नहीं है। फाशिज्म इज बेस्ड ऑन नेगेटिविटी, वो तो है ही नेगेटिव, वो तो जुल्म, बर्बरियत, क्रूएलिटी, सेंसरशिप और ये सब। रियलिज्म जो है ये तो आपको कहते हैं कि कारोबार भी करें, आप कैपिटलिस्ट भी बने, आप डेमोक्रेसी भी, जो सिस्टम आपके लिए बेहतर है वो अपनाएं। रियलिज्म कभी आपको ये नहीं कहता कि आप जालिम बने, लेकिन फाशिज्म में ये है कि आप फोर्स यूज करें, आप लोगों को जो है सबजुगेट करें, पाबंद करें, गुलाम बनाएं, हीरो वर्शिप उसमें होता है। जी कोई और क्वेश्चन है? तो रियलिज्म को नेगेटिव सेंस में ना ले, ठीक है। मोस्टली आवर स्टूडेंट्स टेक दिस रियलिज्म इन नेगेटिव सेंस, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा, व्हाई ऑल वेल्दी पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन अब्रॉड कंट्रीज एंड इफ दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान विल बी अ कैपिटल स्टेट एंड तो ये तो उस पर बिलीव करते हैं ना, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। अब एक अमीर शख्स है तो अब आपके पास भी पैसा आए तो आप भी अपने लिए सेफ जगह ढूंढेंगे ना, तो वो कहां पर सेफ होंगे? लिबर्टी कहां पर है, सेफ कहां पर है, प्रोटेक्शन कहां पर है? वो तो फिर इन्हीं ममालिक में है। मिसाल के तौर पर कनाडा जाएं जो G7 में है, अमेरिका जाएं, यूके जाएं, वहां पर आपको आपकी प्रॉपर्टी को, आपके पैसे को, आपकी जिंदगी को, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है, आप डरते नहीं हैं, कोई ये आपसे चोरी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान पर इतना ट्रस्ट करना, ठीक है, तो फिर नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान अभी तक उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। हाँ, अगर आप मुहिब वतन वाली बात करते हैं तो जाहिर बात है सबको आना चाहिए, सारे अमीरों को यहाँ आना चाहिए, सारों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर किसी के पीछे फिर नेब लगा दें तो जाहिर बात है वो आपसे भागेगा, आप उसको प्रोटेक्ट ना करें, लोगों को काल जाए। जैसे यहाँ पर पिशावर में जो बहुत बड़ा एक मार्केट है, कारखानों मार्केट, वहाँ पर ताजिर काम करते हैं, उसमें एक है सिख ताजिर, उसको जो है काल जाते हैं, जनाब अफगानिस्तान से काल जाते हैं कि आप हमें इतना इतना जो है पेमेंट करें, या बत्ता कहते हैं या जो भी है, रैंसम वो अदा करें तो हम आपको यहाँ काम करने देंगे, अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो हम आपका दुकान जो है ख़त्म करेंगे और आपका जो कारखाना है ये बम से उड़ा देंगे और आपकी ज़िंदगी। तो अब जाहिर बात है ये भी, उसको भी मौका मिले तो ये शख्स भी पाकिस्तान से भागेगा, यहाँ पर तो नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर धरने होते हैं, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, दुकानों के शीशे जो है तोड़े जाते हैं, रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने का कहा तो बाहर फ्रांस का कोई भी बिजनेसमैन आपके मुल्क में नहीं आएगा। इवन फ्रांस के सदर ने खुद अपने लोगों को कहा कि टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर जल्दी से निकले पाकिस्तान से, यहाँ पर ना रहें, कोई भी जो है उसको कत्ल कर सकता है। तो ये सब कुछ होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दैट इट गिव्स टू द पीपल, आर द फ्रीडम इट गिव्स टू द पीपल। अच्छा, फाशिज्म आइडियोलॉजी, बिल्कुल आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है, मोदी का ये भी है, ट्रम्प के अमेरिका का ये भी है। हाउ कम फाशिज्म इज नो मोर? फाशिस्ट स्टेट नहीं है, मैंने जो कहा देयर इज नो फाशिस्ट स्टेट, कंसेप्ट है, फाशिज्म का कंसेप्ट भी है। फाशिज्म जैसे मोदी जो है कश्मीर में कर रहा है वो फाशिज्म है, वहाँ पर सेंसरशिप भी है, वहाँ पर जो है जुल्म भी हो रहा है, वहाँ के लोगों को, पार्टियों को जो है बैन भी किया जाता है, पार्टी लीडर्स को जेलों में भी डाला जाता है। ये सारा जो है फाशिस्ट आइडियोलॉजी है और फाशिस्ट जो है टेक्निक्स है या मीन्स है जो लोगों को सबजुगेट करने के लिए
उसके जो है आज़ादी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। आइडियालॉजी अलग चीज़ है, फाशिस्ट स्टेट नहीं है। अब आप इंडिया को फाशिस्ट स्टेट तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ आपका अपना वजीर आज़म है, पार्लियामेंट है। फाशिज्म में जो है, फाशिस्ट स्टेट में पार्लियामेंट नहीं होता, गवर्नमेंट इनकी जो है अपनी एक पार्टी होती है, मल्टी पार्टी या बाई पार्टी सिस्टम ही नहीं होता, तो फिर तो वो पूरा मुल्क जो है हाईजेक होता है। जबकि ये लोग एक ख़ास जगह पर जो है फाशिस्ट आइडियालॉजी जो है अपनाते हैं। तो इस वजह से आइडिया मौजूद है, फाशिस्ट स्टेट नहीं है। तो आप फिर ऐसा अगर पेपर में लिखे कि इंडिया इज अ फाशिस्ट स्टेट, तो एग्जामिनर आपको एक मार्क भी नहीं देगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। कोई क्वेश्चंस हैं तो बाकी क्वेश्चंस वहाँ एक पोस्ट मैंने दिया है क्वेश्चंस करने के लिए, तो वहाँ पर लिखें करें, एंड देन आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।